Good morning to all students. And now, you all are most welcome in this period. Students, this is Rajesh Kumar Sa, Assistant Teacher of Ramkrishna Vivekanand Vidya Mandir. Students, this is the first class of the online video. Now, today I am going to teach you SST. It means Social Studies. Another name for Social Studies is known as the Social Science. Class 7th. The part of this subject is Geography. आज जो हम लोग पढ़ाने जा रहे हैं वो Geography पढ़ाने जा रहे हैं. Now, here given chapter 1. The type is Components of the Environment. Students, you all are know better. The name of the topics, the given types, both are important of the lesson. I repeat again, students, the given topic, या type is the main part of the lesson. So first of all, I will discuss about the given topic is like the components of the environment. Students, you know this is the divided into two sections. या दो sections में topics है. So what is the meaning of the components? Components means होता है part of things. What is part of things? And now environment. So word of environment, it is the taken from the French word environner. Environner means to surround. Means to surround. So it is clear. The environment means all living and non-living things in around us are called environment. Students, you all are know every year celebrated as World Environment Day on 5th June. कब सेलिब्रेट किया जाता है? 5th जून को किया जाता है. So let us start your class given according to your given topics like the components of the environment. The interrelationship between living organism and the environment is called geography. Students, so what is the meaning of the geography? सबसे पहले हम लोग geography की बात करेंगे. Where does comes from the word of geography? या geography word कहाँ से आया, पहले इसके बारे में आप समझेंगे. Like this, the what is the true shape of our earth? आप बताएंगे कि हमारे ये जो अर्थ है इसकी शेप कैसी है. But you all are know the shape of our earth is just like an orange, a pears, या circular या spherical. That's okay. आप ये जानते हो ना. बट आपको जानकर ये हैरानी होगी और अर्थ जस्ट लाइक इन दिस शेप. हमारी अर्थ की जो शेप है वह ठीक इस तरीके से है. आप बोलोगे क्या सर इस तरीके से है क्या? आप बताइए कि अगर हम ऐसे शेप मानते हैं तो इसका मतलब है. अब आपसे मैं पूछना चाहता हूं. नाउ यू ऑल आर टेल मी. अब आप समझिए कि जब अगर ऐसा शेप रहता तो फिर माउंटेन प्लेन में रहता ना, प्लेटो प्लेन में रहती ना, तो माउंटेन एलिवेटेड पर्सन क्यों है? सो दिस एग्जांपल इज क्लियर हियर. द शेप ऑफ द आवर अर्थ इज जस्ट लाइक. नाउ हियर students, now our earth like just in this picture in the dotted part.
ये डॉटेड पार्ट क्या कर रहा है, ये हमारी अर्थ की शेप को बिल्कुल सर्कुलर में कन्वर्ट कर रहा है ना. नाउ दिस डॉटेड पार्ट इज नोन एज जियोड. व्हाट इज, इसको हम लोग बोलते हैं जियोड. सो इट इज क्लियर द शेप ऑफ द आवर अर्थ इज जियोड. बोलेंगे सर ये फर्स्ट टाइम ऐसा वर्ड हम लोग सुन रहे हैं कि हमारे अर्थ की शेप जियोड जैसी होती है ना, जियोड जैसी होती है. बट स्टूडेंट डोंट वरी. अब आप देखिए जियोग्राफी. व्हाट इज जियोग्राफी एंड जियोलॉजी, इस दो वर्ड से आप समझ लीजिए. जियोलॉजी. नाउ हियर जियो एंड नाउ हियर जियो. दिस बोथ आर जियो वर्ड्स कम फ्रॉम दिस वर्ड जियो. तो आपसे पूछा जाएगा जियो मीन्स क्या होता है, तो आप ये नहीं बोलेंगे सर जियो मतलब वो जियो का सिम, ऐसा नहीं है. यहाँ पे उस स्पेलिंग उसका दूसरा है, यहाँ पे स्पेलिंग देखेंगे जियो. जियो मतलब होता है अर्थ. क्या होता है, जियो मीन्स होता है अर्थ. अब देखिए यहाँ पे वर्ड दिया गया है कि ज्योग्राफी किसे कहते हैं. स्टूडेंट्स अब आप अर्थ पे जरा आइए. दिस पार्ट इज द आउटर पार्ट एंड दिस पार्ट इज द इनर पार्ट. नाउ यू ऑल आर बी कंसंट्रेट योर माइंड फॉर दिस सेक्शन. इस सेक्शन के लिए एकदम पूरे ध्यान से समझिएगा. This part is the belongs to outer part and this part is belongs to inner part. So it is clear. Now the things which study about the outer sections, this is called geography. And things is belongs to inner section, this is called geology. ध्यान दीजिएगा, जूलॉजी नहीं जियोलॉजी. यानी जो अर्थ के इनसाइड का जब हम स्टडी करते हैं तो वह जियोलॉजी कहलाता है, और जब हम इस अर्थ के आउटर मोस्ट लेयर पर की बात करते हैं अगर, उसको हम ज्योग्राफी कहते हैं. लाइक ज्योग्राफी हैज प्लांट, ट्रीज, माउंटेन, प्लेटू, प्लेन्स, है ना, ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा. तो ये सब आउटर पार्ट में आएंगे ना. समझ में आ गया. नेक्स्ट, और दिस इज अनदर पॉइंट इज नेचुरल एनवायरमेंट. सो व्हाट इज कॉल्ड नेचुरल एनवायरमेंट स्टूडेंट्स? द एलिमेंट्स लाइक माउंटेन, रिवर, एनिमल्स, वेजिटेशंस आर क्रिएटेड बाय नेचर. सो इट इज कॉल्ड नेचुरल एनवायरमेंट. क्लियर? अब आप समझ गए होंगे ना कि जियोट हमारी अर्थ की शेप कैसी है, जियोट जैसी है. जियोट वर्ड कहां से आया है, तो आप देखिए ज्योग्राफी और जियोलॉजी से आप देखिए. तो जियो का मतलब क्या होता है यहाँ पे, अर्थ. अर्थ के ऊपरी हिस्सा पे जब हम स्टडी करते हैं उसको ज्योग्राफी बोलते हैं. जब अर्थ के इनसाइड जैसे मेंटल कोर के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो उसको हम जियोलॉजी बोलते हैं. क्लियर? नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज और इन्वायरमेंट वी कैन डिवाइडेड इन द 3 सेक्शन. इन्वायरमेंट को 3 पार्टों में बांटा गया है. कितने पार्टों में बांटा गया है? इन्वायरमेंट. दिस इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन. फर्स्ट इज फिजिकल इन्वायरमेंट. इट इज बिलोंग्स टू अ biotic environment. And now next is biological या biotic environment, and the last is human environment. Now example of, first of all you all are understand here, or biotic is the opposite of biotic. आपको मालूम है कि बायोटिक जो वर्ड है वो बायोटिक का अपोजिट है. तो सबसे पहले इसमें समझना है कि कॉमन वर्ड इज हियर गिवन बायो. क्या है? बायो. इसमें बायो क्या दिया हुआ है? कॉमन वर्ड है. तो बायो मतलब होता है, बायो मीन्स लाइफ. बायो मीन्स क्या होता है? लाइफ. तो इसका मतलब है कि जिसमें लाइफ होगा वो बायोटिक कहलाएगा और जिसमें लाइफ नहीं होगा वो अबायोटिक कहलाएगा. सो इट इज क्लियर, a physical environment या abiotic environment mean non-living things. Clear? Non-living thing. Okay. And biotic means living things. अब तो समझ में आ गया होगा आपको. Okay. The next is
ह्यूमन लाइक द सोशल, इकोनॉमिक एंड ये कल्चरल. नेक्स्ट इज divisions of the environment. You know here a biotic environment. A biotic environment. A student, a biotic environment. Environment has like lithosphere, hydrosphere and atmosphere and biosphere. Atmosphere and biosphere. Now 4R belongs to a biotic environment. Clear? So first of all, try to understand what is the meaning of the lithospheres, hydrospheres, atmospheres and the biospheres. Students, lithos, you know lithos. लिथो मीन्स होता है रॉक. क्या होता है? लिथो मीन्स क्या होता है? रॉक. हाइड्रो मीन्स क्या होता है? वाटर. हाइड्रो मीन्स वाटर. एटमो मीन्स एयर एंड बायो मीन्स लाइफ. So it is, your concept is clear. I repeat again. A biotic environment has lithosphere, hydrosphere, atmosphere and biosphere. Litho means rock, hydro means water, atmo means air, bio means life. So it is clear. The domain of rock is called lithosphere. Yeah, outermost part of the earth is known as the lithosphere. The domain of water is called hydrosphere. The domain of air is called atmosphere, and domain of life is called a biosphere. So clear? Next word is here given water cycle. In the terms of hydrosphere की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो इसमें आता है कि वाटर साइकिल. वाटर साइकिल मतलब क्या होता है? क्लियर? यानी साइकिल मीन्स होता है रिपीट अगेन. So you know what is water cycle? Water moves continuously from one to other. This moment is called water cycle. Like this, take example. Like कोई भी वाटर बॉडीज, जैसे मान लीजिए रिवर में जब सन का हीट पड़ेगा ना, तो इसके वाटर क्या होंगे? हीटेड होंगे, गर्म होंगे. वाटर गर्म होने के बाद क्या होता है? वाटर वेपर में बदल जाता है. क्या बदल जाता है? ये वाटर वेपर में बदल जाता है. वाटर वेपर जाने के बाद ऊपर एटमोस्फेयर में यह कूल डाउन होता है, यानी ठंडा होता है. ठंडा होने के बाद से ड्रॉप ऑफ वाटर में कन्वर्ट हो जाता है. और जब ये ड्रॉप ऑफ वाटर में कन्वर्ट होगा तो ये क्लाउड फॉर्मेट कर देगा. क्या बना देगा? ये क्लाउड बना देगा. एंड जब क्लाउड हेवी मोड में चला जाता है तो ब्रेक डाउन करके ये जब अर्थ पर गिरना शुरू होता है, दिस इज कॉल्ड रेन. तो आपने देखा ये फिर रेन आपने रिवर में चली आई. नाउ दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अ वाटर साइकिल. क्लियर? नेक्स्ट इज atmosphere. You know atmosphere is the very good role for our life on the earth. Without atmosphere we can't live. You can't live on the earth. बिना एटमोस्फेयर का हम रह नहीं सकते. बोलेंगे सर एटमोस्फेयर का मतलब कैसे? एटमोस्फेयर हमको हेल्प करता है. स्टूडेंट्स, आपको मालूम है कि एटमोस्फेयर इज द डोमेन ऑफ द एयर, और एयर को कैच करके रखना इट इज द वेरी बिग चैलेंज, और ये बहुत बड़ी चैलेंज है. बट एटमोस्फेयर ही है जो एक इस गैस को कैच करके रखता है. 5 लेयर में इसको बना देता है ताकि ये ऊपर जा नहीं सके और लाइफ सपोर्टेड हो जाता है. क्लियर? नेक्स्ट है बायोटिक इन्वायरमेंट. स्टूडेंट्स, बायोटिक इन्वायरमेंट मीन्स होता है, बायो मीन्स होता है लाइफ. इट मीन्स बायोटिक इन्वायरमेंट इज द नोन एज द लिविंग थिंग्स, यानी जिसमें लाइफ हो उसको हम बायोटिक इन्वायरमेंट बोलते हैं. तो अ बायोटिक इन्वायरमेंट हैज लाइक ऑटोट्रॉप्स. यहाँ पे एक वर्ड है ऑटोट्रॉप्स. ऑटोट्रॉप्स मीन्स दिस वर्ड इज द मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स लाइक द ऑटो एंड ट्रॉप्स. तो ऑटो का मतलब होता है बाई सेल्फ. ऑटो मीन्स क्या होता है? बाई सेल्फ. और ट्रॉप्स मतलब होता है फूड, यानी बोलेंगे थिंग्स विच क्या या ऑर्गेनिज्म विच फूड प्रिपेयर बाय ऑन इज नोन एज
ऑटोट्रॉप्स मतलब वैसे ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन खुद से बनाता हो उसको हम ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं या प्रोड्यूसर भी इसको कहा जाता है. सो ग्रेट एग्जांपल ऑफ दिस टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म इज द प्लांट एंड द ट्रीज. दैट्स ओके. नेक्स्ट हेट्रोट्रॉप्स. हेट्रोट्रॉप्स. हेट्रो मीन्स other and ट्रॉप्स मीन्स फूड. इट मीन्स जब हम अपने फूड के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड रहते हैं या बोल सकते हैं कि हेट्रोट्रॉप्स जो है वो ऑटोट्रॉप्स पर डिपेंड रहता है, इसको हम हेट्रोट्रॉप्स के नाम से जानते हैं. लाइक ह्यूमन बींग्स, डॉग, क्रो एक्सेट्रा. नाउ नेक्स्ट इज ह्यूमन एनवायरमेंट. यू नो human environment is like the economical status, cultural status, etc. are known as the human environment. Now next is environmental pollution. Students, you know this is the very bad for all of us. Firstly here environment, you all are know environment का मतलब क्या है, क्लास के स्टार्टिंग में बता दिया गया. Now here other word is pollution. What is the meaning of the pollutions in the terms of our environment? Students, इन्वायरमेंट मीन्स आपको बता दिया गया, बट पॉल्यूशन अनवांटेड थिंग्स इन आवर इन्वायरमेंट इज कॉल्ड अ पॉल्यूशन. नाउ वंस द रिजल्ट ऑफ द इन्वायरमेंट पॉल्यूशंस इज एसिड रेन. नेक्स्ट है ग्लोबल वार्मिंग. व्हाट इज द ग्लोबल वार्मिंग? स्टूडेंट्स, जब ग्लोबल वार्मिंग लाइक दिस एक्टिविटीज हैव द रेज टू लेवल ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इज द एटमोस्फेयर which has led to global warming. ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है कि टेम्परेचर राइज कर जाते हैं, और ये टेम्परेचर राइज क्यों करते हैं? तो CO2 के बढ़ने के कारण, CO2 गैस के बढ़ने के कारण. एक्चुअली स्टूडेंट्स, यू ऑल आर नो इन आवर नेचर या एटमोस्फेयर 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल है और इतनी भी आवश्यकता भी है, बट अभी जो है वो 4 के आसपास तक चला गया है. सो इट इज द वेरी बैड फॉर ऑल ऑफ अस, सभी के लिए है. अब आप बोलोगे सर ये ग्लोबल वार्मिंग में CO2 की मात्रा कैसे बढ़ जाती है? स्टूडेंट्स, यू ऑल आर नो पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ रही है तो हम लोग रहने वाले जहां पे फॉरेस्ट थी वहां आज हम लोग रहने का अपना आश्रय बना लिया. तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है कि ये ट्री का जो परसेंटेज है वो क्या हो रहा है, लेस हो रहा है, और पॉपुलेशन हम लोगों की क्या है, पॉपुलेशन जो है वो हम लोग की बढ़ रही है. तो क्या होगा, आप जब रेस्पिरेशन के दौरान आप क्या करते हैं, इन बाय द नोज आप CO2 गैस को रिलीज करते हैं, और ये प्लांट्स जो है वो हम लोगों के लिए O2 गैस देती है. तो जब आपका नंबर ऑफ ट्रीज कम होगा और नंबर ऑफ पॉपुलेशन बढ़ेगा तो होगा क्या, CO2 की परसेंटेज बढ़ेगी और O2 का कंडीशन क्या होगा, यानी ऑक्सीजन का कंडीशन क्या होगा, घटेगा. सो दिस हैपेंड इज led by the global warming. I hope you all are understands everything about this chapter. Now in this way this chapter is completed. Okay, all the best and best of luck.